Hello everyone, I am Rajesh Salandri from St. Austin School. Welcome to my podcast. Today we are exploring the world of AI. How AI the save the future and of the student across the India and world. We have a special guest, CEO and founder of SI Institute of AI, Harshadam Purohit. Thank you so much. So let's start the podcast with basic question. What actually AI mean? It was really pleasure talking to you, Rakesh, and thank you so much for organizing this kind of podcast because it helps all the students to explore the different dimensions and possibilities involved in AI. So if we talk about AI has two things, which is A and I, artificial intelligence. It's a kind of an intelligence where we are mimicking the human intelligence into a machine. Basically what we are targeting is like we are actually creating a copy of a human being. This is the basic purpose of AI, and to be precisely, AI is not something which is very new to us right now. From past few years, we have discussed across the globes, across all the conferences, AI is nothing but a piece of code, which is actually running by itself. This is AI. Algorithms, code was earlier were also present, but we have given a fancy name that is known as artificial intelligence. And now we are living into the world of AI, which is, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी a kind of an intelligence that we have created. Or why we have done this? Because we all are lazy. We want our work to be simpler. We want that there is someone for us to do our jobs. So this lazy mentality give actually rise to a concept that is known as artificial intelligence or machine learning. तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये हो रहा कि AI कैसे काम करता है. AI कब डेवलप हुआ था? कहा जाता है 19 से टाइम में AI आया था, तो इतना टाइम कैसे लग रहा अभी तक इस जनरेशन में आने में? ओके, सो नेशन बेसिकली आप इंडिया की बात कर रहे हो? हाँ. ओके, सो AI is coined around in 1950s and 60s. उस तरफ AI का दशक है कि उस समय AI की नींव रखी गई थी इन अ कॉन्फ्रेंस जहाँ पर एलन ट्यूनिंग और उन सब जिनको हम फोर फादर्स ऑफ AI भी कहते हैं, वो उन्होंने बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया था. एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब AI इंट्रोड्यूस हुआ टू द वर्ल्ड. उससे पहले कंप्यूटिंग जो थी इट इज़ ऑल इन द कोडिंग काइंड ऑफ अ थिंग. लाइक आज भी हम ये जानते हैं कि बेसिकली आई विल जस्ट टेल यू वन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द इंडिया AI समिट recently. So we were there at India AI Summit representing SIN Technologies, and there what we have learned is like we have interacted with a professor of a San Francisco. So उन्होंने हमें ये चीज़ बताई कि that India is right now 20 years back from the San Francisco and global markets जहाँ पर नई टेक आती है. और उससे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था हमें ये था कि ओके लाइक आप कह रहे हो कि दिस इज लाइक हमने उनसे पूछा कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और हम इसको ट्रेन करते हैं, तो उन्होंने बोला कि लाइक वी वर टीचिंग इट पास्ट 20 years back. And that was shocking news because every technology which we are seeing that it's a new to us in the global market, it is actually in its peak stage. And this happened with AI. AI was coined around 1950s and 60s, but till it reaches to the India, because in India 5G भी अभी इंट्रोड्यूस ही हुआ है, मतलब लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर ही, और it is expected कि 6G कुछ in upcoming years ही introduce होगा, and China is already using 6G. So in India we don't have that much of infrastructure right now. We are building that infrastructure. If we talk about the AR/VR development and in core AI development, like our own models of AI, like ChatGPT, it has its own model that is GPT. If we talk about Gemini, it has its own model. They all are having their own models which they have built from databases. We are using it through APIs. हम बस उसको यूज करे जा रहे हैं, बट हमारे पास कोई खुद का AI मॉडल नहीं है. अभी जो इंडिया AI समिट हुआ वहाँ पर 3-4 AI मॉडल्स हमारे खुद के निकल गए, जैसे सर्वम AI, और इन ये जो मॉडल्स थे ये इंडिया के खुद के मॉडल्स हैं और वो अब डेवलप होने लगे हैं, जहाँ पर ChatGPT और ये मॉडल्स 2013 से डेवलप हो रहे थे. तो इतना इंडिया और जो वर्ल्ड है टू सी इतना एम इतना डेप क्यों है इंडिया में, और इतना डेप क्यों आ रहा है अभी तक? कि हमारा इंडिया 20 years पीछे है और वर्ल्ड है जो 20 years आगे है, कैसे इतना डेप क्यों आया? दो कारण है राकेश, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा. दो कारण जो सबसे बड़े हैं. पहला जो कारण है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा गैप हमें देखने को मिला है, ये मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से. हमारे इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है. हम हर चीज़ के लिए फॉरेन जो अदर कंट्रीज़ है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. लाइक अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछूं, अगर आपका व्हाट्सएप बंद हो जाए तो 1 मिनट के लिए आप सोचो व्हाट विल हैपन टू द इंडियन इकोसिस्टम. अगर आज व्हाट्सएप अपना बंद हो जाए तो क्या होगा?
लाइक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था व्हाट्सएप के ऊपर. अगर व्हाट्सएप क्लोज हो जाता है तो क्या हमारे पास हमारा खुद का व्हाट्सएप है ऑन विच वी रिलाई? क्या हम इंस्टाग्राम जो यूज़ करते हैं वो हमारा खुद का है और इट्स क्रिएटेड बाय अ फॉरेन कंपनी? हमारे पास हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जिसके ऊपर हम मतलब भरोसा रख सकते हैं. वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये एक बहुत बड़ी कमी है. आज स्नैपचैट आप यूज़ करते हो, क्या स्नैपचैट इंडिया का है? नहीं. जब हमारे खुद के सोशल मीडियाज ही हमारे नहीं है तो हम ये कैसे रिलाई कर सकते हैं कि हम एक आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और सेकंड प्रॉब्लम है अडेप्टेबिलिटी. यहाँ के लोग अडेप्ट ही नहीं करना चाहते किसी नई चीज़ को. अगर आज आप कोई व्हाट्सएप बना के लॉन्च करते हो तो आप उसको कैसे करोगे? क्योंकि पुराने वाला छोड़ेगा ही नहीं उसको. तो ये दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और अडेप्टेबिलिटी. हमारे यहाँ चीज़ बहुत ज़्यादा स्लो और आराम से होती है और इतनी देर में क्या होता है कि जो फॉरेन मार्केट्स होते हैं वो उस चीज़ को करके ख़त्म कर चुके होते हैं. तो कभी हमें ग्लोबल एडवांटेज मिलता ही नहीं है. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. व्हाई वी आर लिसनिंग एआई आफ्टर सो मेनी इयर्स आफ्टर. तो ये भी कहा जा रहा है जो एआई है अभी बहुत सारी जॉब खा रहा है और आने वाले टाइम में खाएगा. तो हम अपने जॉब कैसे बचाएं एआई से? अगेन जो आपने क्वेश्चन पूछा वो आपका सेकंड पिलर जो कि अडेप्टेबिलिटी है उसको क्वेश्चन करता है कि हम अभी भी उस चीज़ के साथ अडेप्ट नहीं होना चाहते. हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि हमारी जॉब चली जाएगी एआई के आने से. और ये आपकी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना किसी चीज़ की, ये हमारे इनहेरिटेंस की ही बात है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक एन ईयर व्हेन द कंप्यूटर्स हैज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडिया, तो उस समय क्या चीज़ हुई थी? जब सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे, राजीव गांधी जब कंप्यूटर्स को इंडिया में लेके आए थे आईटी डेवलपमेंट को, सो द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज कि व्हाट विल हैपन टू द टाइपराइटर्स. जो टाइपराइटर्स ऑपरेटर्स हैं उनकी जॉब को क्या होगा? ये उस टाइम पे भी क्वेश्चन आया था. बट हमने उस चीज़ को अडेप्ट किया ना, नई जॉब्स निकली, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब निकली, ठीक है, अलग अलग एसडीज रोल्स निकले, अलग अलग डेवलपर्स निकले, प्रोग्रामर्स के रोल निकले. उसी तरीके से एआई का जो पार्ट है, मैंने क्या बोला, इट्स बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अ कोड. अब दो तरीके से कोड का यूज होता है. या तो आप उस कोड को खुद ऑपरेट करके यूज कर रहे हो फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और यू आर राइटिंग दैट काइंड ऑफ अ कोड. देयर आर टू थिंग्स. या तो आप यूजर हो या आप क्रिएटर हो, और दोनों में एआई की जॉब्स नहीं निकलेगी. पहला क्रिएटर्स में निकलेगी जो उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं. क्या हम खुद एआई के फाइन ट्यून कर सकते हैं मॉडल? क्या हम हमारे कंपनी के हिसाब से उस एआई को ट्यून कर सकते हैं? इट्स जस्ट लाइक अ वाटर. आप उसको जहां डालोगे इट विल टेक द शेप. बट क्या आप वो चीज बना सकते हो वो होल्ड जिससे वो एआई शेप ले सके? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन वन. और सेकंड जो आपका है क्रिएटर के बाद वो है यूजर. आर यू अ गुड यूजर ऑफ एआई? क्या आपको टूल्स पता है? परफेक्ट टूल परफेक्ट टाइम पे यूज करना आपको आता है? दिस इज द सेकंड बिगेस्ट क्वेश्चन. अगर आपके पास इन दोनों के आंसर है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जॉब नहीं जाएगी. क्योंकि जॉब्स बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है. बट ऑपरेटर्स ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि कोई अडेप्ट ही नहीं करना चाहता. आज भी हम कॉलेज में वो करिकुलम पढ़ रहे हैं जो कि आउटडेटेड हो चुका है. तो इंडिया में इतना मतलब इंडिया इतना पीछे है एआई के मामले में, तो जो इंडिया जो गवर्नमेंट है कुछ हेल्प नहीं कर सकती अभी. मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एआई तो हम जानती नहीं, इससे नाम सुना है एआई होता है बस, उनके बारे में जानती नहीं, काम कैसे होते वो नहीं पता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ करती नहीं इसलिए कुछ प्लेटफॉर्म्स. देखो जैसे यहाँ पर एक कैप है. गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट हैज डन मेनी थिंग. जैसे इंडिया एआई समिट हुआ, ठीक है, बट हमारे यहाँ की मेंटालिटी क्या है? क्रैब मेंटालिटी है. ठीक है, क्रैब मेंटालिटी मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान कुछ भी करने की कोशिश करे तो उसको नीचे गिराने की मेंटालिटी. ठीक है, इट्स अ क्रैब मेंटालिटी. और वो और कोई नहीं होता, आप ही के लोग होते हैं. अब जैसे इंडिया एआई समिट में बहुत मेजर हाइलाइट्स थी. लाइक इट वाज अ स्टेज वेयर वर्ल्ड बिगेस्ट एआई लीडर्स वर कमिंग ऑन दैट स्टेज. जैसे सुंदर पिचाई was there, बिल गेट्स was there, they were all big tech giants were there. बट लोगों का ध्यान किस पे गया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे, कि उन्होंने कुछ ऐसी फ्रॉड चीज दिखाई इतने नेशनल स्टेज पे, बस वही एक प्रोपोगंडा बन गया और उसी को लेके वो अब चला रहे हैं ऐड उस पे. नॉनसेंस, कंप्लीटली नॉनसेंस थिंग. आप उस चीज को नहीं देख रहे. व्हाट वर द मेजर हाइलाइट्स? आज किसी भी बच्चे को ये नहीं पता कि सर्वम जैसे नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस हुए. उन बच्चों को क्या पता है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी का फ्रॉड हुआ. ये सबसे बड़ी मेंटेलिटी की प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे कितनी भी मेंटेलिटी या कितनी भी नई चीजें लेके आ जाए, बट क्या वो तुम्हें स्कूल में पढ़ाई जा रही है? क्या वो तुम्हारी कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है? तुम्हें पता कैसे लगेगा? वो क्वेश्चन मार्क ही है. लाइक वी आर एट द आई स्टार्ट.
I got to know iStart when I was in my college 3rd and 4th year. Between that, I got to know about this. Like there is a thing iStart is there, which helps in making our idea into reality, which also helps in giving us the grants. I was not knowing this thing. मेरे को कैसे पता लगा? क्योंकि हमने चीज़ें एक्सप्लोर करी, तो यहाँ विजिट किया, यहाँ कोई इवेंट हुआ था और उसकी वजह से हमें पता लगा लाइक दिस काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्चुअली देयर इन जोधपुर. और यही चीज़ हमने जयपुर जाके देखी, हम और हिल गए बिकॉज देयर वाज मोर देन दैट. बताएगा कौन? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. क्योंकि गवर्नमेंट के तो बहुत इनिशिएटिव्स है, सीड फंड है, आपके पास कोई आइडिया है, आप उसके ऊपर अगर बिल्ड आउट करते हो कुछ, यू विल गेट 20 लाख स्ट्रेट अवे. जो इंडिया पे आप जो अभी जो नया बच्चा AI सीखना चाहता है, पर बहुत सारे कोर्स महंगे होते हैं, मतलब 50,000 60,000. तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ AI कोर्स प्रोवाइडिंग कर सकती है फ्री में, जिससे बच्चे और एक्सप्लोर करें, सीख सके आगे. काफ़ी अच्छी बात बोली राकेश आपने, और इस पे काम हो भी रहा है एक्चुअली. लाइक गवर्नमेंट ने अपने कुछ पोर्टल्स पे कोर्सेज फ्री निकाले हैं AI के. इट इज़ देयर ऑन द पोर्टल. आप अगर जाके थोड़ी रिसर्च करोगे तो सरकार ने काफ़ी सारे कोर्सेज निकाले हैं, और हम SIN के अंदर भी एक कोर्स फ्री में लेके आने वाले हैं इस मंथ के एंडिंग में, जिसका हमने AI एक्सेलरेटर करके नाम दिया है. तो आप दिल्ली अभी AI समिट रहे थे, तो आपने कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? इट वॉज रिमार्केबल. लाइक मेरे को नहीं पता मीडिया में किस तरीके से चीज़ों को लेके जाया जा रहा है. लाइक आई वॉज देयर एट दैट वेन्यू, एंड व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड इज लाइक देयर वाज lot of things which you can explore there. Like there was an OpenAI complete stall was there where OpenAI was set up, how they are working. There was a complete dome of Reliance, how Reliance Jio is transforming the things. There is a complete dome of Google was also there, how Google is transforming the things. Amazon, Microsoft, all companies were present there at that time. Like अगर एक आंकड़ा हम निकाले तो it was the biggest event of this last year if we talk about an AI thing. और यही नहीं, it was a work of millions, like we can say from across different countries people traveled and sees the power of AI. Like मेरे लिए चीज़ अच्छी है क्यों होती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे इंडिया के एक रेपुटेशन अप हुई इस इवेंट से कि इंडिया इज ऑल्सो वर्किंग इन AI. देयर इज डिफरेंट ओपिनियन. कोई सोचता है वोट बैंक की वजह से हुआ. हाँ देखो, हर चीज़ में सबका फायदा होता है, ऐसा नहीं है. आज आप भी पॉडकास्ट ले रहे हो तो इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है. इट लाइक दैट, इट्स अ विन विन सिचुएशन. बट जो चीज़ हमें एक्चुअल बेनिफिट कर रही है, अगर इंडिया AI समिट से पीपल गॉट टू नो अबाउट AI एंड इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाई नॉट टू ट्राई. लाइक कितने सारे यंग लीडर्स हमारे सामने आए इंडिया AI समिट में. 13 साल के फाउंडर्स ने आके AI के बारे में बताया. 10 years old founders have told like how they are using AI and building the careers. It's insane. But the biggest question is, like हमने दिल्ली की ऑडियंस से पूछा when we were traveling into the metro, do you know about India AI Summit? We asked simple question. They were like, what is India AI Summit? And we were shocked. It is happening in New Delhi, but they don't know a single thing about what is India AI Summit. This is the actual gap. We are actually busy in the things that has to do nothing with the future. It is only a quick pleasure thing, but in future when we get nothing, then we realize like we have missed something. This is the biggest problem. We should be ready for the future, like 3 years after what will happen, and this gap of 3 years we have to prepare for that goal. Then only we can get to a success in a good way. Otherwise it will be a very hell lot of patience it wants, because in AI every next day new things come up. जैसे आपने कहा कि AI मतलब बढ़ता जा रहा है, ट्रॉमास हो रहे हैं, फुल स्टॉप नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है. तो 2030 तक AI क्या हो रहा है दुनिया में AI के मामले में? It's a nice question again. Like you are predicting this thing, like it's a predictive intelligence. What you are doing is like what will happen in 2030. So 2030 में अगर हम बात करें AI, तो एक्चुअल में AI पे तो काम हो ही रहा है, बट अब जो चीज़ पे काम हो रहा है वो है मल्टी एजेंट स्वाम आर्किटेक्चर, जिसका अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं तो अभी गूगल ने जो रिसेंट इवेंट हुआ था, दैट इज इनपुट आउटपुट इवेंट जो हुआ था IO इवेंट, उसके अंदर गूगल ने एक चीज़ लॉन्च करी, दैट इज दिस 26 विल बी द ईयर ऑफ एजेंटिक AI. यानी पहले हम AI पे थे जहाँ पर हम नॉर्मल जो चीज़ों को प्रिडिक्ट करते थे मशीन लर्निंग को यूज़ कर वो एक स्टेज था. फिर हम एक स्टेज और गए, क्योंकि हमारी लेजी मेंटालिटी चल रही है. जो इंसान लेजी है ना वो प्रिडिक्ट कर सकता है आगे क्या होगा. फिर हमने बोला कि यार AI अभी तक हमें आंसर्स दे रहा है, क्यों ना वो उसको यूज़ कर हमारे लिए काम ही कर दे. तब जन्म हुआ एजेंटिक AI का. ठीक है, तो अभी हम एजेंटिक AI वाले टाइम में चल गए.
अब एजेंट तो आ गए, अब आ रहे हैं मल्टी एजेंट. लाइक इट्स नॉट अबाउट एजेंट, इट्स अबाउट मल्टीपल एजेंट्स विच आर वर्किंग एंड सॉल्विंग वन प्रॉब्लम. लाइक अगर हम एक बात करें तो एक कंपनी है, ठीक है, मेरे को उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी, व्हाट इट हैड डन, लाइक ग्रॉक भी यही चीज यूज करता है. देयर आर मल्टीपल एजेंट्स विच आर वर्किंग, मल्टीपल एजेंट्स. It's not a single agent. You can run a complete IT company. There are 10 to 15 agents on which they have trained. Just take the subscription. You just provide them the problem. The entire IT company will work for you in solving that. और जो राजस्थान जो AI ने मान लो इस स्टेज पर है, और जो मान लो वर्ल्ड इस स्टेज पर है, तो अभी इस स्टेज पे AI क्या मतलब किस लेवल पर है, राजस्थान किस लेवल पर? लाइक अगर मैं राजस्थान का बताऊं तो राजस्थान अभी ढंग से जनरेटिव AI पे भी नहीं पहुंच पाया है. अगर मैं सच्ची बात बताऊं, क्या आप अभी क्लास में AI के बारे में पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हो. अभी तक आप क्या आपको AI और मशीन लर्निंग का डिफरेंस पढ़ाया गया? नहीं. दिस इज द प्रॉब्लम. जब हम अभी तक बेसिक्स रूट्स हमारे क्लियर नहीं हो रहे टिल 12th स्टैंडर्ड्स, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कॉलेज के अंदर आने के बाद वो सीधा मल्टी एजेंट तक पहुंच जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल. और कॉलेज में भी हमारा फोकस क्या होता है, हमें एक चीज़ को कोडेड कर दिया जाता है, वी विल हैव टू टेक अ प्लेसमेंट्स, जो कि एक्चुअल में लगना भी बहुत टफ होता है. क्योंकि एक कंपनी की तरह सोचो राकेश, जैसे सपोज आपकी एक कंपनी है, ठीक है, अगर आपको एक AI सब्सक्रिप्शन 5 से 10 हज़ार का भी मिलता है एग्जाम्पल, और वो 15 दिनों का काम कर सकता है जस्ट एन AI एजेंट, सो व्हाई यू विल नॉट गो फॉर दैट? तुम उसको 24/7 काम करवा सकते हो, तो आप उन 10 जनों को क्यों हायर करोगे? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. आप उन लोगों को हायर करोगे जो या तो वो 10 सिस्टम्स को चलाना जाने, या तो वो होंगे, या ऐसा कुछ हो कि वो उस वैसा का वैसा सिस्टम खुद बना सके, क्रिएट कर सके. अगेन वही चीज आ गई, क्रिएटर और यूजर. तो ये प्रॉब्लम है. अब जो नॉर्मल कोडिंग है, आज भी आप देखोगे कॉलेजेस और स्कूल्स में नॉर्मल कोडिंग सिखा रहे हैं, जिसका लेक्चर सिर्फ एक क्लास में होना चाहिए, दैट इज आई थिंक कि 7th और 8th तक बेसिक कोडिंग बताओ, जिसका उनको कोडिंग के बारे में समझ में आए. फिर सीधा वाइब कोडिंग होनी चाहिए. अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पे काम होना चाहिए कि व्हाट टूल्स यू हैव, हाउ यू कैन बिल्ड समथिंग. तो गवर्नमेंट को एजुकेशन के चेंजेस करना चाहिए, आपको लगता है? गवर्नमेंट ने किए भी है. जैसे मैं बताऊं, करना तो चाहिए, लेकिन वो कर भी रही है. अब देखो धीरे धीरे, जैसे उन्होंने NEP को इंट्रोड्यूस किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो उसके अंदर उन्होंने ये चेंजेस करे कि अब ज़्यादातर लर्निंग बाय डूइंग पे काम होगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे काम हो. वैसे ICT की शुरुआत करी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई अभी जस्ट. तो ये सब जो है, ये बेसिकली आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के लिए हो रहा है. बिकॉज कोडिंग AI कैन कॉपी बहुत इजीली, मतलब क्लॉड कोड कैन कोड विद द वर्ल्ड्स टॉप बेस्ट 10 कोडर्स. पर अभी तो 90% है जो पूरी एजुकेशन है, मतलब सारी थ्योरी पे चल रही है, तब बैटरी जा रही, बस प्रैक्टिकल काम अभी तक नहीं हुआ है. बहुत कम हुआ है जब प्रैक्टिकल काम हो रहा है AI का. तो वही वर्ल्ड लीडर्स हैं जहाँ पर काम हुआ है. अगर हमारे यहाँ पर होता तो हम वर्ल्ड लीडर होते, बट वो नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है आफ्टर 11th and 12th. आइदर वी गो फॉर नीट, JEE, CA की प्रिपरेशंस करनी है, 3-4 फिक्स है कि ये 3-4 चीज़ें होगी. फिर हम एक हनी ट्रैप में फंसते हैं कि हमने नीट की भी तैयारी करी, एग्ज़ाम का भी केस हुआ था रिसेंटली. नीट एग्ज़ाम्स के साथ जो अभी चीज़ हुई वो सबको पता है क्या ट्रैप था वो. फिर हमारे पास यहाँ आगे रिजर्वेशंस भी है, जनरल कैटेगरी और अदर रिजर्वेशन में हम और फंस गए. हम बस एक रेस में दौड़े जा रहे हैं जहां हमें ये पता भी नहीं है कि हमें करना क्या है. बस हमें ये इसलिए करना है क्योंकि हमने किसी को या तो देखा है करते हुए. हमने कभी बैठ के क्वेश्चन नहीं किया व्हाट वी आर डूइंग, इज वी आर डूइंग करेक्ट? क्या मैं इस चीज़ को 18 घंटे दिन में कर सकता हूँ? अगर ये क्वेश्चन हाँ है तो उसमें जाओ, कोई गलत नहीं है. हमारे पास सिर्फ 2-3 करियर ऑप्शंस हैं और हमारे घर वाले भी उसी चीज़ को लेके चलते हैं, वही मेंटालिटी को, यही बस बेस्ट चीज़ है. ऐसा नहीं होता है. तो आपकी जो AI जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई थी? देखो मेरी जो AI जर्नी थी, टेक्निकली मेरा जब मैं कॉलेज में आया, मेरे को तो बस AI के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ पता था. वो भी मैं YouTube की 1-2 वीडियो देख के आया था कि बस ऐसा कुछ न्यूरल नेटवर्क जैसा आर्किटेक्चर दिखता है. एंटायर 2 साल तक तो कॉलेज में मेरे को कुछ पता ही नहीं लगा AI का क्या है. मेरे कॉलेज में सिर्फ ज़्यादातर फोकस वेब डेवलपमेंट पे हो रहा था, एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे हो रहा था, सिर्फ डेवलपमेंट का काम हो रहा था. बट AI के ऊपर इतना काम हमारे नहीं हुआ. हमारे एक सर थे, प्रशांत थानवी सर, ही वॉज इंक्रेडिबल मैन. उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया कि व्हाट इज़ AI, हाउ वी कैन यूज़ इट इन आवर वर्ल्ड. स्ट्रीमलिट का इंट्रोडक्शन दिया, तब जाके AI की थोड़ी मेरे को लगा कि हाँ है. फिर जब मैं कॉलेज की जब छुट्टियाँ हुई, देन व्हाट वी हैव डन, हमने बेसिकली किया क्या कि
हमने एक्सप्लोर करना शुरू करे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, जैसे स्टैनफोर्ड के कोर्सेज को हमने देखा, हार्वर्ड के कोर्सेज को हमने देखा, तब हमें पता लगा कि नो नो नो, लाइक हम जो एआई पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। एआई इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, कि ह्यूमंस कैसे सोचता है और उस पर काम करना है। फिर आप थोड़ा वापस लेजी मेंटालिटी लाओ और अपने एल्गोरिदम्स लिखो। तो मेरे ऐसे शुरुआत हुई, मैंने बाहर की चीज़ें सब एक्सप्लोर करी, मैंने सारी डेफिनेशंस देखी, मेरे को पता लगा एआई इज नॉट अ फुल स्टॉप, इट्स अ कॉमा। आप अपनी खुद की डेफिनेशन भी दे सकते हो एआई को, इट्स राइट नाउ देयर। और आपकी इस इंस्पिरेशन कौन थे एआई के लिए? मेरा तो सबसे पहला इंस्पिरेशन था वो था आरडीजे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, आयरन मैन, जिससे मेरे को पता लगा एआई जैसी चीज़ होती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम जार्विस को ऑन स्क्रीन देखा कि इट इज़ डूइंग थिंग्स फॉर दी आयरन मैन, फिर मैंने एक वीडियो देखी मार्क जुकरबर्ग की यूट्यूब के ऊपर, वो आज भी अवेलेबल है, उसने अपना खुद का जार्विस बनाया था, आप भी जाके उसको देख सकते हो। तब मेरे को पता लगा कि नहीं यार, दिस थिंग्स आर पॉसिबल, लाइक अगर ये कॉन्सेप्ट भी है बट स्टिल देयर इज समथिंग इन इट। फिर धीरे धीरे मेरी इंस्पिरेशन में मैंने जिससे पढ़ा उनका मैं नाम बताऊं तो एंड्रू एनजी, ही इज़ अ साइंटिस्ट इन गूगल डीप माइंड, उनसे मैंने पढ़ाई करी ये चीज़। माइक्रोसॉफ्ट और स्टैनफोर्ड के मैंने कोर्सेज देखे, और स्टैनफोर्ड में एंड्रू एनजी पढ़ाते हैं, उनका कोर्स era एक्चुअली एंड्रू एनजी का ही है पूरा। तो वहाँ पर फ्री कोर्सेज भी थे, वहाँ पर एक फाइनेंशियल एड जैसी चीज़ होती है कि आप अपना फाइनेंशियल एड दे सकते हो, तो फाइनेंशियल एड से पूरा कोर्स आपको विद सर्टिफिकेशन फ्री में मिल जाता है। तो मैंने काफ़ी सारी फाइनेंशियल एड्स भरी और उससे पढ़ा, तो ऐसे चीज़ को किया मैंने, मतलब मैंने ट्राई करा कि ग्लोबल एक्सपोजर जितना मिल सके। तो आपकी फैमिली में आपने पहले स्टार्ट किया ये कंपनी? हाँ, मेरे पूरे फैमिली में मैं ही हूँ जिसने बिजनेस की तरफ देखा है, बाकी अभी तक हमारे कोई बिजनेस में इतना नहीं है। अभी तब बहुत सारी परेशानी आई होगी अब तो, कैसे जोरदार start किया है तो कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा आपका? बिल्कुल, लाइक मेरे को बिजनेस में सेटअप करने में जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी वो ज्ञानेंद्र, मेरा फ्रेंड है, उसने करी। बिकॉज पहले जेआईटी में इतना बिजनेस का कल्चर था ही नहीं। जेआईटी में सिर्फ इतना था, आपने इवेंट करवाओ, घर जाओ, जो करना है आपको, जो करना है आप कर सकते हो, बट बिजनेस का इतनी मेंटालिटी नहीं थी। मेरे को तो पता भी नहीं था रजिस्टर कैसे होती है कंपनी। तो मैं एक दिन ज्ञानेंद्र को मैंने बुलाया, बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट वन हमारे पूरे कॉलेज से जिसने एक स्टार्टअप को स्टार्ट किया था। आप उसको फाउंडिंग फादर बोल सकते हो जेआईटी के स्टार्टअप का। तो उससे मैं मिला, उसने मेरे को बोला कि इट्स जस्ट लाइक अ मैरिज, लाइक इफ़ यू विल स्टार्ट यू विल हैव टू बी विथ इट थ्रू आउट योर लाइफ। इट्स नॉट लाइक समथिंग यू हैव स्टार्टेड कि अब मन लग रहा है तो कर रहे हैं, एक दिन बाद मन नहीं लगेगा चेंज कर देंगे। इट्स नॉट दैट ईजी। इंडिया में कंपनी खोलना जितना ईजी है उससे टफ कंपनी को बंद करना है। एक्चुअल में ये स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया में कंपनी खोलना जितना आसान है ना, उससे ज़्यादा टफ जो है वो कंपनी बंद करना है। तो आपने जो SI इंस्टीट्यूट ऑफ AI जो कंपनी है आपने लॉन्च की थी कौन से साल में? देखो 2024 अराउंड अगस्त सितंबर की तरफ मैंने इस चीज़ को लॉन्च किया, दैट इज स्कूल ऑफ AI। उसका कारण दो थे। जब हमने SI एंड टेक्नोलॉजीज में प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, पहला विंग हमारा SI एंड टेक्नोलॉजीज था, तो उस विंग में जब हमने काम करा हमें पता लगा देयर इज राइट नाउ नॉट अ कॉम्पिटेंट मैन पावर टू वर्क विद द टेक इन AI के लोग ही नहीं है, एक्चुअल में एबंडेंस है, क्योंकि जो AI जिसको आता है वो खुद अपना वेंचर या कुछ शुरू कर देता है। तो एक्चुअल में ऐसे लोग ही नहीं है जो काम करे AI में, और जिसको एक्चुअल में अगर AI यूज़ करना आ गया ना, वो हमेशा कोलैबोरेशन ही करेगा। ये एक मेंटेलिटी है। तो जब हमें ये लगा कि जोधपुर में इस चीज़ की कमी है कि अभी तक कोई स्किल चीज़ है ही नहीं, तब हमने स्कूल ऑफ AI का विजन निकाला कि वाई नॉट बी ट्रेन स्टूडेंट्स। हम ट्रेन करेंगे और अगर उनमें से कुछ अच्छी मैन पावर हुई तो हमारे लिए भी यूज़ हो सकती है, और इससे कम्युनिटी का भी बेनिफिट हो गया। बिकॉज सबके लिए इतना एक्सेसिबल नहीं होता है कि वो बैठ के 8-8, 9-9 घंटे पढ़ लें चीज़ को। सो देयर इज समथिंग विच हेल्प्स देम टू बी इन डिसिप्लिन। तो उससे स्कूल ऑफ AI की शुरुआत हुई। तो आप अभी कितने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी अप्रॉक्स मैं आपको बताऊं तो अभी जैसे हमारे पास 3 से 4 स्कूल्स कोलैबोरेशन में है, इन विच वन वी आर ऑल्सो टारगेटिंग इन जयपुर, कि सून वी विल बी देयर इन जयपुर इन द कमिंग मंथ्स। और एक जो चीज़ सबसे बड़ी है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अभी तक हमने 25,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। लाइक मैं अगर मेरे कॉलेज के 3rd ईयर से आपको बताऊँ तो हमने ऑनलाइन ऑफलाइन रेगुलर इवेंट्स ले लेके काफ़ी लोगों को ट्रेन किया है। दोनों लाइक देयर वाज वन प्लेस देयर जब हमने एक महीने में 50-50 इवेंट्स कंडक्ट करे हैं ट्रेनिंग के, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सो इट्स लाइक दैट। तो आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं? 5 साल बाद
देखो मैं 5 साल बाद अपने आप को देखना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट जनरेशन अब आने वाली है कि मल्टी एजेंट वाली जो हम है, तो हम मेजरली रिसर्च करें और हमारे खुद के मॉडल्स हम मार्केट में लेके आए AI के। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ जस्ट लाइक चैट GPT या जेमिनाई, हम हमारे खुद के मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर सकें। जैसे राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, तो हमने एक चाणक्य करके AI मॉडल है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली उसकी सेपरेट टीम है। चाणक्य जो है इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन स्किल, सो इट्स विल वर्क लाइक दैट कि राकेश आप 6th क्लास में हो, आपने अपना एक गोल जो भी आपने बनाया हुआ है, आइदर वो फिल्म स्टार भी आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है, एक इंस्पिरेशन और गोल आप उसमें डालोगे, दिस AI विल हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर कंप्लीट जर्नी बाय गिविंग यू अ रोड मैप, रिसोर्सेज। तो इस AI मॉडल पर भी हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम काफ़ी लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स को भी स्क्रैप कर रहे हैं कि जो अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स हैं जिससे कुछ अच्छे रिमार्क्स मिल सके, जिससे एक छोटी क्लास से ही आप इस चीज़ के ऊपर काम कर सको, स्किल्स पे। क्योंकि अब AI आने के बाद यू कैन रिप्लेस एनीथिंग बट यू कैन नॉट रिप्लेस स्किल्स। लीडरशिप जो आप में है वो आप में ही रहेगी, AI कांट रिप्लेस अ लीडरशिप, तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो आपका माइंड सेट AI के मतलब आप कंपनी चला रहे हैं, तो आपका माइंड सेट क्या है, तो ये करना है मुझे। तो जो मेरा माइंडसेट है मेजरली वो रहता है कि फर्स्ट देयर आर 3 स्टेजेस। मेरा बेसिकली माइंडसेट 3 चीज़ों से चलता है। पहला तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच यूज़ करता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल यानी लाइक कोई अगर ये चीज़ बोलता है कि इट्स नॉट पॉसिबल, तो उसका मतलब जब तक उसके पीछे कोई फैक्ट या बेस नहीं है, जब तक उस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मतलब मैं इग्नोर कर देता हूँ सीधा सीधा दिमाग से। जैसे मेरे को पहले लोगों ने ही बोला था कि जोधपुर में AI की एजुकेशन का कुछ नहीं होगा, आप बाहर चले जाओ, वहाँ ज़्यादा स्कोप मिलेगा, बट स्टिल मेरे को जोधपुर में मिल रहे हैं, लोग सीखना चाहते हैं जोधपुर में। मतलब बेस होना चाहिए। तो पहला मेरा लेयर है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है कि वाई वी कांट डू इट, गिव मी दी प्रोसीजर, क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज जोधपुर का मार्केट ऐसा है कि अगर आपने क्रैक कर लिया ना, तो पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ, आप कभी डिफीट नहीं खाओगे। यहाँ पर इतना मतलब फ्लेक्सिबल मार्केट है, आपको अपने सारी पॉलिसीज़ को इतना फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरी मेरा माइंडसेट में जो चीज़ आती है वो आती है इफ़ वी आर कमिटिंग टू समथिंग वी विल हैव टू डू इट। अब जैसे इंसिडेंट था, जैसे बीच में हमें फ्लिपकार्ट के रोबोट्स बनाने थे व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, तो वहाँ मैंने जो चीज़ देखी और समझी, हमें रोबोटिक्स का आर भी नहीं पता था उस टाइम तक, ना कोई AI था, ना चैट GPT था, कुछ भी नहीं था, ओनली वी हैव इज गूगल। और सबसे बड़ी बात क्या, जोधपुर में रोबोटिक्स के टीचर ही नहीं थे। ये सब चीज़ें तो अब आई है जब इंडिया AI समिट और ये चीज़ें हुई है। हमने 4 महीने तक सिर्फ हम घूमे हैं जोधपुर में ढूंढने के लिए कि रोबोटिक्स का क्या है, कैसे होता है ये। हमने चैलेंज तो उठा लिया, अब हमें पता नहीं करना कैसे उसको। फिर आपने वो कैसे बनाया रोबोट? अब उसमें क्या हुआ कि जब हम ढूंढते ढूंढते गए ना, तो हमें लोग मिलते गए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टीचर मिले, उन्होंने बोला ऐसे करो। तो हम लैब में बकायदा सोए थे, कोई उसके लिए हमें पे नहीं कर रहा था कि हमने रोबोट्स बनाए कुछ, इट वाज अ चैलेंज। तो हम लोग कॉलेज में रुके, हमने रिसर्च करी लेबोरेटरीज में, 3 से 4 दिन हम सोए हैं कॉलेज में, बट बाय द एंड ऑफ द डे वी हैव डन दैट। तब हमें एक चीज़ पता लगी कि प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि एक रिसोर्सेज की कमी है, प्रॉब्लम है कि हम बैठ के उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम सोचते हैं एक ही दिन में चीज़ हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, आपको महीने भी लग सकता है। बट अगर आप किसी चीज़ को कमिट कर गए ना, तो वो फिर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रहता है इंसान के साथ। ये काम पूरा हो गया क्या आपके? कौन सा रोबोटिक वाला? कौन सा? ये रोबोटिक्स वाला? फ्लिपकार्ट वाला वो हो गया था पूरा। ये कैसे किया? वो उसका एक वीडियो भी है, मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। वो हमने बेसिकली क्या था, 4 रोबोट्स थे और वो इस तरीके से बने थे कि आपके उस रोबोट्स को जाके डिलीवर करना है, जो भी उनका कार्गोज होता है वो डिलीवर होना चाहिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था पूरा। तो और सबसे बड़ा इसमें चैलेंज में ये था कि यू कैन नॉट यूज एनी काइंड ऑफ अ सेंसर। सेंसर के साथ चीज़ें फिर भी ईजी होती है, बट आपके पास जब सेंसर नहीं हो, इट्स ऑल मैथ्स। आपको टाइम नोट करना पड़ेगा, किस टाइम पे वो रोबोट एक्टिवेट होगा, उतनी देर में वो जाएगा, डिलीवर करके वापस आएगा। क्या आपने ये कौन से एरिया बेल्ट में किया ये वाला? किस बेल्ट में किया? जोधपुर में किया था, जोधपुर में छत पे किया था टेस्टिंग। जैसे आपने फ्लिपकार्ट का बोल रहा है, हाँ पूरा अपने भारत में? हाँ, पूरा भारत में चैलेंज ऑर्गेनाइज हुआ था ये, तो उसमें जोधपुर की टीम को हमने किया था और आगे उसका अच्छा हमारे पास रिजल्ट्स भी आए थे। समझा नहीं चैलेंज। इट वॉज लाइक देयर इज वन प्रॉब्लम विच इज नोन एज फ्लिपकार्ट ग्रिड, अगर आपने सुना हो तो, अनस्टॉप पे थी वो। तो उसमें बेसिकली रोबोटिक स्टैक और ये सब अलग अलग होते हैं। तो जब हमने कॉलेज में इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था ना, तो विश्वास ही नहीं हुआ किसी को, लोगों को ही लगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी कॉलेज में किसी ने लिया ही नहीं था पार्टी। टास्क था कि इसको करना है और इसको जो करेगा उसको कुछ रिवॉर्ड्स थे, तो हमें वो रिवॉर्ड्स भी मिले फिर।
सर्टिफिकेशन, हाँ मेरे इंटरेक्शन भी हुआ फ्लिपकार्ट की टीम के साथ, मतलब काफ़ी अच्छा रहा। बट सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मेरे को लगा इस चीज़ से, वो ये है कि अब जब चैट जीपीटी और इतनी चीज़ें आ गई है तो हम चीज़ों को क्यों नहीं ढूंढ के निकाल सकते। और देखो हमेशा बात बताऊँ, ट्रेडिशनल फील्ड में आप जितना रहोगे ना उसमें आपकी अपस्किलिंग नहीं होगी, क्योंकि और इतनी भीड़ है वहाँ पर ट्रेडिशनल स्किल में तो। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, ज़्यादा भीड़ नहीं है इस फील्ड में, एआई, मिक्स्ड रियलिटी, ये अभी खाली है। सो यू विल गेट अ न्यू टैलेंट्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, इट्स लाइक दैट, ये पूरा सीन है। तो अभी यदि स्टूडेंट है एआई सीखना चाहता है तो क्या बेसिक करे कि आने वाले भविष्य में उन्हें जॉब मिल सके। उन्हें जॉब ना मतलब वो रही नहीं, जॉब चली जाएगी नहीं, जॉब अपने आप सामने से आए एआई सीखने के बाद। इसके 5 स्टेप उनको फॉलो करना है। सबसे पहला उनको ये सीखना है कि सोचते कैसे हैं, ठीक है। एआई आने के बाद आपको एक चीज़ से मिसकंसेप्शन नहीं होना है कि हर चीज़ के लिए जाके चैट जीपीटी पे सर्च कर लें। देखो आप पहले अपने माइंड में चीज़ सोचो पूरी, ट्राई कि आप 3 प्रॉम्प्ट्स में आंसर निकाल सको पहले, फिर ट्राई करो धीरे धीरे एक प्रॉम्प्ट में आंसर है। चैट जीपीटी पे आप जो देते हो इट इज नोन एज प्रॉम्प्ट्स। अगर आपको अपना माइंड ग्रो करना है यू कैन यूज दिस प्रोसीजर, 3 प्रॉम्प्ट्स में आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता है यू विल लूज अ चैलेंज, टेक चैलेंज बाय योरसेल्फ। फिर जो लेटेस्ट एआई अपडेट्स आती है सेकंड, उससे अपडेटेड रहो, क्या नए नए मॉडल्स आए हैं, कैसे उनको यूज़ करना है, हर लेटेस्ट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तीसरी, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, इट इज़ द बिगिनिंग। पहले आप यूज़र बनोगे तब क्रिएटर बन सकते हो ना। आपने कभी गेम ही नहीं खेला तो गेम बनाना कैसे सीखोगे। उसी तरीके से कभी आपने एआई को यूज़ ही नहीं किया उसके एक्सटेंट तक जाके तो कैसे सीखोगे। अगर सब्सक्रिप्शन लेना भी पड़े किसी एआई मॉडल का, लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किताबें नहीं खरीदते क्या 300-400 रुपए की, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप एआई का सब्सक्रिप्शन लेके उसकी पूरी लिमिट तक टेस्ट करो उसको, इट डजंट मैटर, इट्स अ बुक, इट्स जस्ट लाइक अ बुक। आप उस बुक की तरह तो यूज़ कर रहे हो चीज़ें निकाल के। ये सोचो 2000 लगने दो, बट वी विल एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। अगली बार 2000 नए टूल को दो, क्लॉड को लो, कभी एंथ्रोपिक का क्लॉड खरीदो, कभी चीज़ें एक्सप्लोर करो, जिसमें जेमिनी है तो शायद फ्री भी है। सो आपको एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, जैसे आप कर रहे हो, आप चीज़ें आके बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो इन चीज़ों पे। 4th स्टेप में ट्राई करो कि आप छोटी एज में 3-4 इंटर्नशिप्स ले पाओ, और ट्राई करो जितना हो सके स्टार्टअप्स में। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी में आपको एक फिक्स काम दे दिया जाएगा और उस पर एक अटका दिया जाएगा बस कि यू हैव टू डेवलप दिस, बस अब आप यहीं हो। स्टार्टअप में होती है पूरी इंसान की मैराथन, उसका डेवलपमेंट पार्ट भी होता है, उसका मार्केटिंग भी आता है, तो पूरा सीखता है वो लीडरशिप तक। तो ट्राई करो, स्टार्टअप में काम जरूर होना चाहिए आपका 1 से 2 साल। मैं आपको बताऊं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना जो अभी बन रहे हैं, उन सब ने स्टार्टअप्स में काम किया हुआ है, नोटिस करना, क्योंकि उसमें वो आ जाती है फ्रेजाइलनेस। अब मैंने जैसे किसी को, मेरे दोस्त को काम दिया कि यू हैव टू वर्क ऑन AR VR, अब उसको बिल्कुल पता नहीं है AR VR क्या है, बट मैंने उसको बस दे दिया। अब वो 1 महीना उसमें दिमाग लगाया जा रहा है। ऑब्वियसली चाहे वो कितना ही कोशिश कर ले, प्रोबेबिलिटी भी ये कहती है 1 महीना अगर इस चीज़ में रह गया ना, ही विल बिकम द मास्टर ऑफ इट। वो कैसे भी रास्ता निकाल लेगा उस चीज़ को करने का। तो ये चीज़ होनी चाहिए, हमेशा अलग चीज़ ट्राई होनी चाहिए। तुम्हारी वैल्यू क्यों बढ़ेगी राकेश, अगर आप आज सब पॉडकास्ट ले रहे हैं, ठीक है, बट जोधपुर से आप ले रहे हो, जोधपुर में 10 पॉडकास्ट ले सकते थे बट आपने ली, तो आपकी वैल्यू बढ़ी ना। द थिंग विच इज रेयर विल हैव इट्स इंपॉर्टेंस। सब वेब डेवलपर बन जाएंगे तो वेब डेवलपर की वैल्यू खत्म है। तो हमें नए लोग चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर। I was having a question. ओके, राकेश, आप कितने टाइम से इसमें वर्क कर रहे हो पॉडकास्ट के ऊपर? अराउंड 1 year. Around 1 year. from last 1 year. So what was your growth? Processing. Nice. It's a great work. Keep doing. Best of luck from my side. Thank you. ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी लिया जा सकता है। वी कैन टेक 1 क्वेश्चंस। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। ओके, अर्शिता इस क्वेश्चन। Okay, as you told कि स्टूडेंट्स जो है उन्हें 7 to 8 क्लास तक बेसिक कोडिंग सिखा देनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट दे शुड बी यूजिंग प्रॉम्प्ट्स, ChatGPT एंड अदर AI टूल्स टू डू द वर्क मोर स्मूथली। सो अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बच्चे बिना कोड के, एज यू सेड पहले आप बोल चुके हैं कि AI जो है एक्चुअल में AI टूल्स भी कोड करके ही बने हुए हैं। तो जब बच्चे सिर्फ बेसिक कोडिंग करके AI टूल्स पर उतर जाएंगे तो नए AI टूल्स को कैसे क्रिएट करेंगे?
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर जो 8th और 9th के अंदर है, वी कैन इंट्रोड्यूस वन थिंग, दैट इज दे हैव टू सेलेक्ट देयर ट्रैक। आप यहाँ पर ये कर सकते हो, देखो आप AI टूल्स के बिना आप रह नहीं सकते, ये एक सबकी मजबूरी बन गई है। आप कोई भी 8th से 9th क्लास वाले को जाके पूछोगे व्हाट इज ChatGPT, उसको पता है, वो सारा होमवर्क ही उससे ही करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ करी जा सकती है कि जो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो हम 8th से 9th वाली ले रहे हैं, उस लैंग्वेजेस के अंदर हम बेसिकली पाइथन और ये लैंग्वेजेस डाल सकते हैं जिससे AI टूल्स बनते हैं। और ऑब्वियसली अगर उनको देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगी तो वो तो एंटी ग्रेविटी पे जाके कुछ भी कोड कर सकता है। लाइक देयर आर टूल्स लाइक एंटी ग्रेविटी, वी हैव Zchat, वी हैव लवेबल, बहुत सारे टूल्स हैं जिनको यूज करके चीज़ें बन सकती है। बट कोडिंग मैंने क्यों बोला कि उनको 2-3 साल आनी चाहिए, बिकॉज उनको पहले पीछे के टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। लाइक व्हाट इज इफ एल्स, व्हाट इज लूप्स, तो उनको जब वो प्रॉम्प्ट में लिखते हैं तो उससे कॉन्टेक्स्ट और इंप्रूव होगा, और जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट इंप्रूव होगा उतना उसकी परफॉर्मेंस और आंसर इंप्रूव होगा। ये पूरा क्रक्स है जी। आजकल बहुत सारे ऐप है जो बिना कोडिंग के, वेबसाइट है, ऐप है, गेम्स बनाए, जो क्यों बच्चे हैं ना कोडिंग सीखें। ऐसे बहुत सारे ऐप है बिना कोडिंग के सब बिल्कुल। बना सकते हैं। बट मेरा इससे आप में से एक क्वेश्चन है, आप बना लोगे और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि बेसिक बिना एरर वो वर्क करेगा। कभी अगर कोई ऐसा एरर आया जिसमें AI हेलुसिनेट हो गया तो आप क्या करोगे? मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि आजकल चलो वो भी AI टूल्स हैं जो बग सॉल्व करते हैं, बट मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये है कि कभी भी उसमें कोई एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसको AI हेलुसिनेट करके, हेलुसिनेशन बेसिकली AI कंफ्यूज हो जाना, बहुत सारा जब डेटा होता है तो AI कंफ्यूज हो जाता है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? और डेवलप करते समय अगर आपको ये पता ही नहीं है कि फ्रेमर मोशन से ये एनिमेशन आता है, ये टर्म्स ही आपको पता नहीं है, तो आप AI को एफिशिएंटली यूज कैसे करोगे? एक्चुअल में लोग गलत मान रहे हैं, वो मान रहे हैं AI पूरा एक स्फीयर है। नहीं, AI सिर्फ एक तीर है। धनुष जो है ना वो आपकी नॉलेज है जो आप में है। अगर आप में धनुष आपका मजबूत है तो तीर भी मजबूत चलाओगे तो काम हो जाएगा, बट धनुष भी वीक है और आप उस पर तीर इतना भारी लोड कर रहे हो, कभी ना कभी तो प्रत्यंचा टूट जाएगी आपकी, और जिस दिन वो टूट गई ना उस दिन बहुत बुरे फंसोगे। तो इसलिए कोडिंग का ऐसा सीन है कि आपको बेसिक पता होना चाहिए। लाइक पाइथन है, पाइथन किस चीज़ के लिए यूज़ होती है ये तो बेसिक पता होना चाहिए ना। वेब डेवलपमेंट के लिए React.js यूज़ होती है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको इनको डिप्लॉय करना है तो आपको इसके लिए बेसिकली रेंडर यूज़ करना पड़ेगा, वर्सल यूज़ करना पड़ेगा। अब ये टर्म हो सकता है काफ़ी नए टेक्निकल में मैं चला गया, बट ये चीज़ें अगर आपको पता नहीं होगी, आप प्रॉम्प्ट क्या दोगे और आप समझोगे कैसे चीज़ को? So you have to do cheating but in intelligent way. ये सीन है। So it's done.